everyone. Hi, this is Vikash Kandoi from Value Stocks. I'm heading research at Value Stocks. So thank you all for joining this webinar with me. So we'll be discussing how to select quality mutual funds so that we can invest, so that we can get good return from our mutual fund. So hope most of you are investing in mutual fund. Can I have raise of hand or confirmation in chat that how many of you are investing in mutual fund? Okay, I think most of you. Yes. Okay. So, so how you decide on which fund which fund will do well? How you decide that? How you choose mutual funds? We have 60 people, so returns. Okay. Anybody else? Based on historical return, CAGR rating. Okay. Broker advice. What else are we looking for investing in mutual fund? Just a second. Okay, stock portfolio. Only one person sees stock portfolio based on. So if I ask Mr. AD, so if you look at stock portfolio, so how do you analyze them? There are 70 stocks in a portfolio. Is it easy to analyze 70 stocks? Based on money invested in large cap, mid cap, fund house invested in which company? Okay, Sundar Kabiraj ji, so invested in which company, but how do you study those companies? There are too many companies. Okay, we can analyze top holding. Okay, so already you people are same way we analyze individual stock, but there are 70 stocks. AD, Mr. AD, there are 70 stocks. So studying fundamentals of 70 stocks should take at around how many hours? I don't know, 4 or 5 hours or a 4 or 5 week. So I can see already, yeah, returns. So most of you, there's a traditional approach while investing in mutual fund. We follow a traditional approach of looking at returns, isn't it? Fund performance according to benchmark, exactly. But is it correct? Is it correct looking only at returns? So most of you investor has got this understanding that while you choose any mutual fund, depend on return, it's a kind of technical analysis which we are doing on mutual funds, isn't it? Aren't we doing technical analysis on mutual fund? Only technical analysis, looking at price. 5-year return is positive, 3-year return is positive, 1-year return is positive, 6-month return is positive, 1-month return is positive, 3-month return is positive. These are all yeah. So 5-year return positive. These are technical. Yeah. Fund manager is okay, but otherwise, if we check, we generally do technical analysis. So this is a traditional approach via which we choose mutual fund. But if we want to do fundamental analysis, like ADG is saying, only few people, I think in a group of 90 people, I found 2 people saying they look at stock portfolios of fund. And I don't know how they manage, because managing stock portfolios, reading stock portfolios is a big research work. Okay, but yes, friend, this is the new technology. This is the new system of identifying great quality mutual funds. That's great, Rashmi ji. So
we have got a new system. Would you like to know what if I provide at a go? How will it look like if I provide at a go fundamental analysis of each mutual fund? Exactly, ADG. How will it sound if I can provide you within a minute? You can understand the fundamentals of mutual fund. How will it help? Will it help you? We have 93 people. Yes, okay, of course. Okay, before going to that, first let me understand what is fundamental, because until unless we are not in same page on fundamentals, we may not come to a position where we are finding mutual funds on the basis of fundamental. Okay, so friend, what is fundamental? What are some great parameters that we need to see before investing in a stock? Because let us come to the from the root thing, because while we want to invest in equity, great equity mutual fund, we need to check what is the underlying is equity holdings. So if equity holdings are of not good quality or of not good fundamental, how will my fund give return to me? Yes. So friends, so what do you think? What are the fundamental parameters of looking at quality stocks? How to choose quality stock? Define that, yeah, this company is good. Okay, already. Okay, very great. Thank you. Balaji has given good answer. He's saying revenue growth, profit growth, debt shareholding pattern, cash reserve. That's great. Good management. Good management. How do you decide good management? Chetan ji, that it's a very broader answer you have given, but we want an exact answer that how do you decide that management is good? Okay, Mangesh ji, okay, cash flow and earning. Thank you, Kapil ji. Exactly, most of the people are answering now because you guys are from mutual fund industries, so you must be having these answers with you. So let me reveal for those who are still struggling to find out the answer for fundamentally great companies. So friends, there are only 4 fundamental strong factors which will help you to identify great stock. Now, what are those 4 fundamental factors? Those 4 fundamental factors are sales growth, profit growth, return on equity greater than 15, and free cash flow positive, and positive free cash flow, and low or no debt. So 4 fundamental factors: sales growth, profit growth, return on equity greater than 15, and positive free cash flow. So do you think, friend, कि हम लोगों को और कुछ देखने की जरूरत है? अगर मैं ये 4 फंडामेंटल फैक्टर देखता हूं, अगर मैं ये 4 फंडामेंटल फैक्टर देख लेता हूं कोई कंपनी में, सब कुछ उसी में आ जाता है। अनिल जी, आप जैसे ही सेल्स ग्रोथ लेते हैं, मोट अपने आप उसी में आ जाता है। जिस कंपनी में सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है कंटिन्यूअस, उसका कोई मोट नहीं होता है। एग्जैक्टली। नो रश्मि जी, दैट इज सेकेंड पार्ट, कि हम लोग देख सकते हैं 5 साल 10 साल का, लेकिन आपको अगर कंपनी का फंडामेंटल जानना है तो पहले फंडामेंटल पे स्टडी करते हैं। हाउ मच शुड बी द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ? अरे पॉजिटिव ही कर लीजिए सर। सेल्स ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि सेल्स तो हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट तो हो रही है। और अगर आपने कुछ भी पॉजिटिव ग्रोथ किया, दैट मींस पिछले बार से आज आपने बेटर किया। और कंटिन्यूअस अगर आप बेटर करते जाएंगे एज अ कंपनी, इफ यू कंटिन्यूअसली डू बेटर, you will reach a place where you will be giving your investors huge return. So do we require anything else, friend? What do you think? क्या हम लोग इस 4 फंडामेंटल फैक्टर्स के अलावा कुछ हम लोग को रिक्वायरमेंट है? सेल्स से हमें क्या पता चलता है कि लोग जो कस्टमर्स हैं, जो कंपनी के कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं,
they are enjoying product and services of that company. Yes, प्रॉफिट से क्या पता चलता है हमें कि उस कंपनी में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो बनाया है उन्होंने वो तो लोग पसंद कर ही रहे हैं, और मैनेजमेंट ने ऐसा किया है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए फायदा करने के लिए प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ और रेगुलरली ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव है। देन फ्री कैश फ्लो। नाउ anybody who does not understand what is free cash flow, then I'm going to explain you what is free cash flow in a very simple manner. Anybody in the group who is confused with free cash flow? कोई भी ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं फ्री कैश फ्लो को लेके, तो आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल मैनर। ओके दिनेश तरवानी जी, एनीबडी एल्स? और सभी को पता है फ्री कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस? ओके, सो ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, 2-3 जन हैं। ओके, ओके, सो क्या होता है फ्री कैश फ्लो में? फ्री कैश फ्लो में कंपनी ने 1000 करोड़ का सेल्स किया और 100 करोड़ की प्रॉफिट की, ठीक है? और 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, 1000 करोड़ का एक साल में सेल किया और 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 100 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट कर दी और उसने एक मशीनरी खरीद ली। तो उस साल उसके पॉकेट में कितना रुपए रह गया? सिंपल मैथमेटिक्स। ओके रश्मि जी, विल डिस्कस। मैं सिंपल मैथमेटिक्स पूछ रहा हूं। वी हैव 115 पीपल, a company has made sales of 1000 crore and has made profit of 100 crores and has bought 100 crores of machinery. So what is the balance left with the company? Zero. Exactly, zero. So this is what company does. ये ही कंपनियां करती हैं, वो दिखाती हैं कि हमने मशीनरी खरीदी है। तो जब कंपनी एक साल कंपनी मशीनरी खरीद सकती है, सेल्स किया, प्रॉफिट किया, कैश फ्लो जीरो, अरे ये कैसे? लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअस 3-4 साल 5 साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, दैट मींस कंपनी इज इन बिग ट्रबल। कंपनी के पास कैश रखने की हैबिट नहीं है। सो अगर मैं अपने डे टू डे लाइफ के बारे में बात करूं, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अ सैलरीड पर्सन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अ बिजनेसमैन। तो आप लोग जो भी अर्निंग कर रहे हैं, अर्न करके और सैलरी कमा के, मान लो किसी का ₹1,00,000 सैलरी होगा, किसी का 50,000, किसी का 60,000, और मंथ के एंड में अगर आपके पास सैलरी में से 0 पैसे बचते हैं या नेगेटिव है, आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया थ्रू क्रेडिट कार्ड और समथिंग, दैट मीन्स यू आर इन नेगेटिव फ्री कैश फ्लो। सो वैसे ही अगर आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर कंपनी को स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनियां कितनी दिक्कतों में आ जाती हैं। दे कम इन बिग ट्रबल व्हेन दे डू लाइक दिस। जब भी अचानक से, what happen when you don't have cash in your hand? When there is big trouble, when there is a crisis like COVID, like somebody is ill in your house, what happen? You struggle, you come in stress. In a similar way, a company come in stress if he or she, or sorry, a company come in stress when it does not able to save money as a free cash flow. Okay friends, fourth one, a return on equity. So return on equity should be greater than 15. एज ए इन्वेस्टर, मैंने जो अपने पैसे लगाए हैं उस कंपनी में, जो निवेश किया है उस कंपनी में, उसके ऊपर कंपनी कितनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, सो रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 15। और हम लोग रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग कम से कम चाहते हैं कि 15%, 13%, 14%, 15% का रिटर्न दे, क्योंकि डेट फंड ही हम लोग को 8-9% का रिटर्न दे देती है। तो जब हम रिस्क ले रहे हैं, तो वी वांट दैट 6% एक्स्ट्रा, 6-7% एक्स्ट्रा फ्रॉम इक्विटी मार्केट। Yes, we'll discuss, Ajay ji. Please have patience. Yeah. So friends, now from
121 people can I have these 4 fundamental factors on chat? Can I have these 4 fundamental factors on chat so that it will help you to keep in mind as well as on your heart? While you are making investments, you will be seeing these 4 fundamental factors. Okay, thank you. Thank you, Raghunath ji, Satyagopan ji. Tiwari Vinod ji has written only sales growth. Only sales growth, profit growth, return on equity greater than 15, and positive free cash flow. Latika ji, thank you. This will help you to keep in mind and your heart while you're making your investment, and it will help you to create wealth and wealth and wealth in your on your fund. Yes, so free cash flow is nothing but it helps you identify debt also. So you can also see debt with a free cash flow. Okay, now nobody has asked me for how many years should we see this. We should see this for 5 years. 5 साल से कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है कि नहीं, 5 साल से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है कि नहीं, 5 साल से कंपनी कोई पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है कि नहीं, और 5 साल से कंपनी का रिटर्न इक्विटी ग्रेटर देन 15 है कि नहीं. अगर ऐसा है कोई कंपनी तो इट्स अ बेस्ट एरिया टू इन्वेस्ट इन, इट्स अ बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन. ठीक है, कोई एक साल अप डाउन हो सकता है, फॉर विच वी डोंट नीड टू वरी. सो द स्कोर विल बी, सो हम लोगों ने इसको एक स्कोर दे दिया. वी हैव गिवन स्कोर टू we have given score to this fundamental factor. Now I will show you. So उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप में से मुझे कोई भी एक स्टॉक का नाम बताएं, so that I can share how will this score look like. So हम लोगों ने क्या किया है, सारे जो कंपनियां हैं एनएससी में लिस्टेड कंपनियां हैं, उन सबको हम लोगों ने एक स्कोर दे दिया है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस 4 फंडामेंटल फैक्टर्स. इन 4 फंडामेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करके हम लोगों ने सारी कंपनियों को एक स्कोर दे दिया, सारी एनएससी लिस्टेड कंपनियों को. अब मैं आपको दिखाता हूं. यहाँ पे हम लोग, हमारा वेबसाइट का नाम है valuestocks.in. हमारी वेबसाइट का नाम है valuestocks.in. मैंने चैट में भी दे दिया है. अगर आप अभी भी अगर आप देखना चाहते हैं, कोई कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अभी भी जा सकते हैं. सो हम लोग आते हैं, सिलेक्ट विनिंग स्टॉक विथ QBS को क्लिक करते हैं, और मुझे पहली जो कंपनी का नाम मिला था, आई थिंक इट वाज एशियन पेंट. तो लेट्स टेक एशियन पेंट. सो हम लोगों को क्या देखना है, नो क्वालिटी बिजनेस स्कोर ऑफ एशियन पेंट. हमने टाइप किया और यहाँ पे आ गए. सो आप देख रहे हैं हम लोगों ने दिया है 22/22, ग्रेट कंपनी. ठीक है, हम लोगों ने डिफाइन भी किया है, हम लोगों ने कुछ रिसर्च किए थे, उस रिसर्च पेपर के आधार पर 18 से 22 का स्कोर जिस भी कंपनी का होता है वो ग्रेट स्टॉक होते हैं, बहुत ही ज्यादा लाजवाब कंपनियां होती हैं. 15 से 17 जो होते हैं वो गुड कंपनियां होती हैं. 10 से 14 जो होते हैं वो मॉडरेट कंपनियां होती हैं. 9 एंड बिलो पुअर कंपनियां होती हैं. 9 एंड बिलो पुअर कंपनियां होती हैं. ठीक है, सो 9 एंड बिलो पुअर कंपनियां होती हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, क्वेरी है. ठीक है, सो कैसे हम लोग ने डिफाइन किया, मैंने आपको 4 फैक्टर बताए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ विच इज ऑल्सो नोन एज EPS ग्रोथ, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. सो सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पे 5% पॉजिटिव है, तो मैंने इसको 1 का स्कोर दे दिया. प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है 25%, तो मैंने 1 का काउंट दे दिया. फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, इसलिए 1 का काउंट. और हम लोग क्वार्टरली में लेटेस्ट जो लास्ट जो क्वार्टर आई हुई है उसको भी हिसाब से हम लोग उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ डाल देते हैं, क्योंकि क्वार्टर में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं मिलती है और
आपको फ्री कैश फ्लो नहीं मिलती। तो इसलिए आपको क्वार्टरली का ये डाल देते हैं। तो इसमें भी 1 स्कोर है और 1 स्कोर है। तो ओवरऑल हर बार एशियन पेंट, आप बहुत जन सोच रहे होंगे कि हाई पी है, ये है। सर सारे फंडामेंटल फैक्टर्स, माने सारे वैल्यूएशन फैक्टर्स बाद में आते हैं, पहले फंडामेंटल फैक्टर्स आते हैं। तो फंडामेंटली एशियन पेंट इतनी बढ़ती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट मेरे पास एक किसी ने लिखा था, अब हम लोग देखते हैं L&T, लेट्स टेक लार्सन एंड टूब्रो। सो अब हम लोग एक लार्सन एंड टूब्रो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग म्यूचुअल फंड में दिखाएंगे कि हम लोगों ने इस चीज को, तो हम लोगों ने क्या किया, हर एक कंपनी को एक स्कोर दे दिया। हाँ, सो हम लोग देखते हैं अब लार्सन एंड टूब्रो में कि उसका क्या है। सो लार्सन एंड टूब्रो 13 की काउंट है। अभी उसमें क्या हुआ, उसमें ईपीएस ग्रोथ हुआ क्वार्टरली, ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव था लेकिन सेल्स ग्रोथ नेगेटिव था, तो हम लोगों ने 0 दे दिया। तो ऐसे हम लोग स्कोर देते हैं। सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव था 1 मिला, ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव था 1 मिला, लेकिन फ्री कैश फ्लो में स्ट्रगल कर रही है। आप देखिए लार्सन एंड टूब्रो फ्री कैश फ्लो में स्ट्रगल कर रही है। जब भी हर साल लास्ट 5 साल से, अब बहुत लोग ये तर्क दे सकते हैं, बहुत लोग ये तर्क दे सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसलिए, बट ऐसी बात नहीं है। अगर आप फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं सेविंग हैबिट नहीं है आपकी, ठीक है। तो उस केस में आपको जब भी मार्केट में क्राइसिस आएगी, फॉल आएगी, तो लार्सन टूब्रो विल बी द फर्स्ट वन, Larsen Toubro will be the first one to fall. Larsen Toubro will be the first one to fall. ठीक है फ्रेंड्स। सो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। और हम लोगों ने ये दिया है 13 स्कोर, और हम लोगों ने मेंशन भी किया है कि 10 से 14 तक की कंपनियां जो स्कोर होती हैं वो मॉडरेट कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो ये लार्सन टूब्रो कैसी कंपनी है, मॉडरेट कंपनी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इसको कैसे म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट किया, नाउ इट्स टाइम टू शो दैट। वुड यू लाइक टू सी दैट कि हम लोगों ने इस एनालिसिस को म्यूचुअल फंड में कैसे सेलेक्ट किया। ओनली 1 पर्सन, ओके, 5-6% ओनली, ओके। So let's go for it. So अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जितनी भी कंपनियां होल्डिंग थी, अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। सो हम लोगों ने एक वेबसाइट में एक सेक्शन बनाया हुआ है, नो क्वालिटी म्यूचुअल फंड। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, हम लोगों ने बनाया फंड कैटेगरी। यहाँ पे एज पर सेबी के गाइडेंस के हिसाब से, जो एमफी में आपकी सेबी ने एमफी में जितने फंड्स हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, वो सब दिखा दिए जाएंगे। तो आज के दिन अगर आपको जानकारी लेनी है कि लार्ज कैप में कितने फंड लगे हुए हैं, तो हाईएस्ट फंड लगे हुए हैं लार्ज कैप में 1,66,000 करोड़, एंड फ्लेक्सी कैप में लगे हुए हैं 1,45,000 करोड़, ELSS में लगे हुए हैं 1,16,000 करोड़। और कितने फंड्स हैं वो भी मैं दे रहा हूं, 32 फंड है लार्ज कैप में, 25 फंड है फ्लेक्सी कैप में, ELSS में 42 फंड्स हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, तो फिलहाल रिटर्न वाइज देखते हैं, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी रिक्वायरिंग कि जिस फंड ने रिटर्न बहुत ज्यादा दिया है जिस कैटेगरी में, उसमें देखते हैं। तो स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है,
स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 48% का। तो अब मैं स्मॉल कैप सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने स्मॉल कैप लगा दिया और यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है, हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई करा दिया कि किसका क्यूबीएस। तो हम लोगों ने एक और एक चीज किया बहुत जबरदस्त, दैट इज अल्फा जेनेटर स्कोर। बहुत कुछ लोग थे स्टार्टिंग में जिन्होंने कहा कि हम लोगों को बेंचमार्क से देखना है कि हमारा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने पहले फंडामेंटल को निकाल दिया। But you said we should see 1 year, 3 year, 5 year return. So हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने फंडामेंटल्स चूज कर लिए कि कौन कौन से फंड फंडामेंटली स्ट्रांग हैं बाय दैट स्कोर। तो पहले मैं स्कोर दिखा दूं, तो हम लोगों ने क्या किया, हाँ पहले मैं वो दिखाई देता हूँ। हाँ, एक्सेस स्मॉल कैप, एक्सेस स्मॉल कैप का क्यूबी स्कोर है 15.70। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और इसकी होल्डिंग देखता हूं। ये हम लोगों ने यहाँ पे होल्डिंग्स दे रखी है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको होल्डिंग्स मिलेगी। सो आप देख सकते हैं हर एक फंड के बारे में, जैसे टाटा एलेक्सी है एक्सेस में, तो 3.5% उसने इन्वेस्ट किया है और 21 की इसकी क्यूबीएस है। देन गैलेक्सी सर्फिकेंट में 20 की क्यूबीएस है आउट ऑफ 22। फाइन ऑर्गेनिक्स में 19 की क्यूबीएस है आउट ऑफ 22। ब्रिगेड में 6 की क्यूबीएस है। ये एक फंड उसने गलत लिया हुआ है ब्रिगेड, जिसमें उनका 4.5% का रिटर्न है। तो ऐसे करके हमने सबका क्यूबी स्कोर इसमें डाल दिया। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं, आई थिंक नंबर ऑफ स्टॉक्स इज मोर देन 100, 49 नंबर स्टॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 49 स्टॉक्स हैं। उनका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता, बट विद दिस स्कोर इट इज सो इजी। सो हम लोगों ने इसके पूरे वेटेड एवरेज, इनका जो स्कोर है वो निकाला है 15.70। और हम लोगों ने क्या किया है, हर इसका 10 क्वार्टर का, लास्ट 10 क्वार्टर का इसका बेंचमार्क के संग इनका रिटर्न भी चेक कर लिया। तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा जेनेटर स्कोर। एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टूड दिस अल्फा जेनेटर स्कोर, आई थिंक क्वालिटी बिजनेस स्कोर, एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टूड क्वालिटी बिजनेस स्कोर? कोई भी ऐसे हैं जो क्वालिटी बिजनेस स्कोर जिनको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आ गया आई थिंक, या निशान जी डिड नॉट अंडरस्टैंड क्वालिटी। मैंने बताया ना 4 फंडामेंटल फैक्टर्स, आप शायद लेट ज्वाइन किए फिर। सो हम लोग एजीएस पे डिस्कस करेंगे अब। या विल बी डिस्कसिंग अबाउट एजीएस, जस्ट अ मिनट। तो हम लोगों ने क्या किया है, मैं एक रिलायंस के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। मैंने रिलायंस का एजीएस क्रिएट किया हुआ है। सो हम लोग क्या करते हैं, हर ये 20 क्वार्टर का है। स्टॉक्स के लिए हम लोग 20 क्वार्टर देखते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए हम लोग 10 क्वार्टर का देखते हैं, लास्ट 10 क्वार्टर का। तो 3-3 महीने का म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकालते हैं और उसके बेंचमार्क का रिटर्न निकालते हैं। तो जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लीजिए आप। रिलायंस का हमने नवंबर टू सितंबर का रिटर्न देखा कि रिलायंस का रिटर्न था -14%, और निफ्टी का रिटर्न था, बेंचमार्क निफ्टी पकड़ते हैं तो 11% पॉजिटिव था। तो निफ्टी को कम से कम 11% तो रिटर्न देनी चाहिए थी उस क्वार्टर, लेकिन उसने नुकसान दिया 14% का। तो टोटल अगर मैं देखूं तो बाजार में अगर मैं इन्वेस्ट करता, बेंचमार्क में अगर मैं इन्वेस्ट करता तो 11% बनता। तो हिसाब से मैंने रिलायंस के कारण 25% खो दिया। सो नेगेटिव 24, इंडेक्स ने दिया 12% का रिटर्न उसके पिछले क्वार्टर में, और रिलायंस ने दिया 36% का रिटर्न। तो फ्रेंड्स, आई मेड एक्स्ट्रा 24% देन बेंचमार्क, सो पॉजिटिव। देन 16% का रिटर्न दिया एंड इंडेक्स वाज -15%, आई मेड एक्स्ट्रा 31, आई मेड एक्चुअली 31%, दैट इज पॉजिटिव। रिलायंस ने 1% का रिटर्न दिया जबकि इंडेक्स ने 2% का रिटर्न दिया,
तो मैंने 1% का नुकसान किया। ऐसे करके हम लोग 10 क्वार्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल लेते हैं। तो यहां पे मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, अल्फाजेंट स्कोर 10 क्वार्टर में एक्सेस का 7 रहा है, मतलब लास्ट 10 क्वार्टर में 7 बार, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, सॉरी, लास्ट 10 क्वार्टर में 7 बार अल्फाजेंट स्कोर पॉजिटिव रहा है। दैट मींस बेंचमार्क से इस फंड को परफॉर्म करने का बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करने की हाई चांसेस है इस फंड में। एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टूड येट, ये इसके पास बहुत हाई पोटेंशियल है कि ये बेंचमार्क को बीट करेगा अगेन एंड अगेन, बिकॉज आउट ऑफ 10 इट इज एबल टू बीट 7 टाइम। ओके फ्रेंड्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो हम लोगों ने एक तरफ तो फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया हर फंड का, और दूसरी तरफ हम लोगों ने बेंचमार्क के संग उसका पोटेंशियल समझ लिया। तो इससे हम लोगों को हेल्प मिलता है। नाउ कमिंग बैक टू स्मॉल कैप, सो इससे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अगर हम लोगों को कोई फंड में फंडामेंटल भी अच्छी है और मोमेंटम भी अच्छी है, तो मैं उस फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। सो उसको फर्दर हम लोगों ने एक एनालिसिस किया कि हम लोग क्यों आज के दिन, आई थिंक बहुत लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे यहाँ पे। वी हैव 123 पीपल। हाउ मेनी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर in this group? How many are mutual fund distributor? Okay, Mangesh ji, one. Anybody else? Okay, MFD. Ashish Pal ji, MFD. Anybody else? Only 2 people. Me. Okay, Jayesh ji. Nitish Goyal ji. Okay. So sir, आप लोगों को कोई भी फंड अगर आप अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन देते हैं, इफ यू आस्क, ओके ग्रेट चेतन जी, सो अगर आप अपने कोई भी क्लाइंट को अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेशन देते हैं, सो व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स, आउटलाइन बोल रहा हूं मैं, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स दैट यू लुक एट? राजेश त्रिवेदी जी, प्लीज डोंट गो बाय दोज थिंग्स, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। सो मेरा सवाल है एमएफडी से कि पहले जब आप कोई भी फंड रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो 2-3 चीजों का क्या ध्यान रखते हैं? फॉर हिस्टोरिकल रिटर्न नहीं, एयूएम का ध्यान रखते हैं क्या? AUM is important for you? AUM is important. हम लोगों ने क्या किया है? यस, सो हम लोगों ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ 3 requirement, because we have discussion, we have meetings with most of the mutual fund distributors in IFAs, तो हम लोगों ने देखा 3 रिक्वायरमेंट आती है उनकी, जिससे वो हेल्प होता है उनको अपने क्लाइंट्स को बताने में कि क्या फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो वो 3 रिक्वायरमेंट क्या है? AUM, कि AUM थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तो ही क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाहता है कोई भी फंड में, अदरवाइज एक फियर फैक्टर हो जाता है। सेकंड, उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो क्वालिटी बिजनेस स्कोर से हम लोगों ने क्वालिटी निकाल लिया। तीसरा, AGS से हम लोगों ने मोमेंटम निकाल लिया। सो अगर मैं ये तीनों फैक्टर ले लूं, तो मुझे 1 साल 2 साल 3 साल का देखना ही नहीं है, मुझे तो बेंचमार्क से बताया है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने रिटर्न देख लिया, मैंने क्वालिटी देख लिया, फंडामेंटल्स देख लिया और AUM देख लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर उस हिसाब से हाईलाइट कर देते हैं कि उस सेक्शन के सबसे बेस्ट फंड क्या है। तो हम लोगों ने इसीलिए कोटक को, बिकॉज इसका AUM भी ज्यादा है, ये टॉप 6-7 फंड्स में भी है एज पर द क्वालिटी, और इसका AGS भी बहुत हाई है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे मार्किंग करनी। हम लोग DSP भी ले सकते हैं, यहाँ पे DSP भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि DSP में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। सो कोटक हो गई, DSP हो गई, ये 2 फंड बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव है इन स्मॉल कैप,
और ये आज से नहीं, हम लोगों ने बहुत पहले से ये निकाला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज वन वे यू कैन चेक म्यूचुअल फंड्स, सेलेक्ट क्वालिटी म्यूचुअल फंड। लतिका जी, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आइदर आप एसआईपी करें या लमसम करें, बट हाँ, अगर आप जनरल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, तो और सैलरीड आदमी हैं, सैलरीड इनकम अर्नर हैं, तो एसआईपी इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। और आप रेगुलर अगर मार्केट नहीं देखती हैं तो अच्छे फंड्स में एसआईपी आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में एक बेस्ट तरीका ढूंढ निकाला जिससे आप बेस्ट फंड निकाल सकते हैं। सो या स्मॉल कैप इज रिस्की सर। यस लतिका जी, so did you like this sir? Anybody who, so how is your uh, rating for MF sir? The QB score is a rating, it's a huge rating of MF. You don't, those rating does not have any outline behind it, any logic behind it. They have that logic but that is not disclosed. Okay, or a QB score is itself a rating, it's a CIBIL score, you can say, a kind of CIBIL score for the mutual funds. Okay, so please check out sir, go to this Value Stocks app now. Even if like this is how we can provide you best funds, कैसे आपको best fund choose करना है वो है, then we also have strategies, because आज के दिन बहुत से लोग हैं जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। कितने लोग हैं जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? we have 126 people, so who all are investing direct and with no understanding, or don't think otherwise, but with no understanding, with no guidance. For अगर आप लोग कर रहे हैं तो that would be a very risky proposition. ठीक है, for them we have created some strategies tested on Python AI softwares and created for them. Okay, अगर आप लोग कर रहे हैं then let's see, हम लोगों ने कुछ आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है in which we have, हम लोगों ने स्ट्रेटजीज बना दी हैं सारी, और हर स्ट्रेटजी का रिटर्न्स भी है, 5 साल का क्या रिटर्न है, आप उसको चेक कर सकते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के संग। जो आप अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें वैसे म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न है आपका, उसके साथ आप चेक कर सकते हैं। फॉर एसआईपी हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा टूल क्रिएट किया है। जैसे वी हैव स्ट्रेटजी फॉर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज मिड, मल्टी कैप, ELSS, फोकस्ड एंड फ्लेक्सी। तो हम लोगों ने सारी कैटेगरीज में हम लोगों ने स्ट्रेटजीज बना दी टेस्ट करके। मैं आपको खाली लार्ज कैप दिखाता हूं। यस, दीज रिटर्न CAGR। सो आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने हर महीना करंट मंथ का क्वालिटी बिजनेस स्कोर ले लिया, पिछले मंथ का क्वालिटी बिजनेस स्कोर ले लिया, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हर मंथ अपना होल्डिंग देती है, और लास्ट 12 मंथ का रिटर्न ले लिया और AUM ले लिया। ये फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस एनालिसिस एंड AUM, ये 3 फैक्टर को यूज करके हम लोगों ने निकाल दिया कि कौन सा फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये हम लोग हर मंथ देंगे आपको। यहाँ पे सारी डिटेल है कि कौन कौन सा फंड्स आ रहा है हर महीने, और आपका क्या ड्रॉडाउन रह रहा है और क्या रिटर्न रह रहा है। सो आप देख सकते हैं, सो हम लोगों ने इस रिटर्न्स को क्यूमुलेटिव कर दिया है। तो ठीक है, टॉप 5 फंड का रिटर्न है 485, हम लोगों का परफॉर्मेंस है -8% है बेंचमार्क का, और हम लोग का है 56। सो हम लोगों ने क्या किया कि सबको हम लोगों ने सम कर दिया। तो हम लोग हर महीने आपको 2 फंड, 1 फंड देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी दिस वन, या हर महीने हम आपको फंड्स देंगे
जिसको आप एसआईपी कर सकते हैं, जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर कोई फंड खराब हो रही है या कोई फंड बहुत ज्यादा अच्छी फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है, उनका मोमेंटम भी अच्छा आ रहा है, प्राइस रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फंड में आ जाएगी और आपको सुपर रिटर्न मिलने लग जाएंगे। सो बहुत बार होता है हम लोग स्टक हो जाते हैं 5-5 6-6 साल के लिए, और जिन आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सा फंड हम लोगों ने हिस्टोरिकली दिया है। लार्ज कैप में आई थिंक देयर आर 40 फंड्स जहां पे हम लोगों ने अभी तक मैक्सिमम जो, तो इसलिए आपका मंथ ऑन मंथ एक ही फंड चलते जाएगा, लेकिन अगर वो फंड खराब हुआ तो वो एग्जिट भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? तो जैसे आप देख सकते हैं एक्सेस ब्लू चिप, यूटीआई। सो एक्सेस ब्लू चिप हैज कम मोस्ट ऑफ द टाइम। करंट मंथ में भी एक्सेस ब्लू चिप ही हम लोगों ने रिकमेंड किया है। देन यूटीआई, बीएनपी पारिबास, यूटीआई बहुत बार आई है, बीएनपी पारिबास बहुत बार आई है, कैनरा रेबको 6 बार आई है, मीरे 1 बार आई है, कोटक 1 बार आई है और एसबीआई 2 बार आई है। ओके यस विशाल जी, आपने एकदम सही कहा कि हम लोगों का म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है। बट अगर कोई फंड, पॉइंट समझिए, अगर कोई फंड अगर खराब हो रहा है इन शॉर्ट टर्म, तो वी नीड टू एग्जिट दैट फंड, वी नीड टू एग्जिट दैट फंड। और कोई फंड बहुत उभर के आ रहा है तो हम लोगों को उस फंड में एंटर करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस, आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। लेकिन अगर कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो उसमें से चेंज होते रहना है। ठीक है विशाल जी, इसीलिए मैंने आपको दिखाया एक्सेस 25 बार आया है, 25 महीने में हर बार एक्सेस ब्लू चिप आया है। यूटीआई 15 बार आया है। ठीक है विशाल जी, अगेन यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। आपको मूव करना ही ना पड़े, आपको 6 महीने साल भर में एक बार शायद मूव करना पड़े। और मूव भी क्या पड़ना पड़े, इफ यू आर डूइंग एसआईपी, आपको एग्जिट नहीं करना है राजेश त्रिवेकर जी, यू डोंट नीड टू एग्जिट, यू बाय। आपको एसआईपी को चेंज करना है। लाइक एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल इन ऑन एन एक्सेल। say for example Jan, Feb. आपने जैन में सपोजिंगली आपने इन्वेस्टमेंट किया एक्सेस में और कोटक में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर इनका फंड, अगर कोई दूसरी फंड, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि ये फंड खराब हो गए, लेकिन कोई ऐसी थर्ड फंड है जो कि बहुत अच्छी होके आ गई है, तो आपको कंटिन्यूअस एक्सेस और कोटक में ही हर महीने आपको करने हैं। हम लोग जनरली कोटक एक्सेस यही चलते रहेगी, लेकिन जून में एक्सेस तो रहेगा एज इट इज, लेकिन इसके जगह हम लोगों ने यूटीआई भी रेकमेंड कर दिया। ठीक है, सो हम लोग जनरली 2 फंड करते हैं, तो कोटक के बजाय हमने यूटीआई कर दिया। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो कोटक का फंड का जो परफॉर्मेंस है या क्वालिटी बिजनेस स्कोर है वो घट गया है, इसलिए वो हट गया, और या यूटीआई ने बहुत ही सुंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हायर रिटर्न बनने का चांसेस हाई हो गया। तो आप एसआईपी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आप एसआईपी करते रहेंगे इन दोनों में। यहां पे आप कोटक में एसआईपी नहीं करके आप यूटीआई और एक्सेस में एसआईपी चालू कर देंगे। समझ रहे हैं सर आप? तो आपने कोटक को एग्जिट भी नहीं किया, नो नीड टू एग्जिट कोटक, नो नीड टू एग्जिट कोटक एंड इन्वेस्ट इन यूटीआई। यूटीआई फिर उसके बाद आपका ये, yes you can call it as a rebalancing, would be a actually a better word।
ठीक है, और हो सकता है रीबैलेंसिंग हो ही ना, क्योंकि अगर आपका मतलब अगर फंड, yes, you can stop SIP anytime. You can stop and you can direct to some else. Yes, you need to stop SIP in Kotak and start in UTI. ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे बेनिफिट क्या होगा आपको, जो फंड अच्छा कर रहा है आप हमेशा उसके साथ रहोगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपको 5 साल का होराइजन है, लॉन्ग टर्म होराइजन है म्यूचुअल फंड का, तो मुझे कैसे होगा. बल्कि इस केस में आप एक्चुअली 5 साल क्या 10 साल 20 साल 50 साल भी म्यूचुअल फंड के संग रह सकोगे. तो क्योंकि आप अच्छे फंड में हो. आशीष पाल जी, you may find it hard, but point is client are finding it very hard क्योंकि returns नहीं आ रहे. So it will help, sir Mangesh ji. It is helping. It is helping. We need to change our mindset. Otherwise, we will not be able to give returns to our clients. जो भी MFDs हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में गौर करें, सोचें. खाली ऑपरेशनल प्रेशर के रीजन से क्लाइंट को एक बेनिफिट जो दे सकते हैं हम लोग, उसको ना रोकें. बहुत जन हैं जिन्होंने HDFC से एग्जिट ही नहीं कराया, HDFC म्यूचुअल फंड से, जिसने रिटर्न नहीं दिया. यस, उसके बाद आप कोटक की SIP से कब विड्रॉ कर सकते हैं, अजय कुमार जी का क्वेरी है. सो आफ्टर ए ईयर, लाइक जब भी आपने जैसे जनवरी, सो ये मान लीजिए ये है 20th का, ये मान लीजिए 2021 का है ये. तो अगर एक्सेस वापस नहीं आता है, तो जिस भी दिन आपका एग्जिट लोड उसमें नील हो जाता है, आप उस दिन एग्जिट कर दो. ठीक है, ये मान लो ये चले जा रहा है. नाउ ऑन मे, नॉट मे, या on May you can start exiting, like ये जो जैन वाला है आप जैन में एग्जिट कर सकते हो. इनफैक्ट मे में यू कैन एग्जिट फुल फ्रॉम कोटक. सो दिस इज हाउ यू कैन. सो आप हमेशा अच्छे फंड, दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रेटेजी. हम लोगों ने ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर दिया एंड हम लोगों ने इसको क्यूमुलेटिव रखा है, एक एक साल का रिटर्न रखा है. यू कैन सी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है 20 फरवरी 2020 को और इन्वेस्टमेंट रखा है 22 फरवरी 2021 तक. 2 फंड हम लोगों ने रिकमेंड किया था. बेंचमार्क 21 हम लोग थे 19%, यहाँ पे बेंचमार्क 19%, वी वर 20% फॉर 1 ईयर. Then 8%, 12%, 7%, 10%, 3%, 2%, 2% minus 2%, 6% plus 2%, 3% minus 1%, 4% minus 12%. इसको हम लोगों ने क्यूमुलेटिव किया और इसको क्यूमुलेटिव किया. Benchmark is 8% negative and this strategy is positive 56%. और टॉप 5, तो इस प्रोसेस के साथ आप टॉप 5 फंड में रहते हैं. टॉप 5 फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए कंटिन्यूअस, तो 65% का रिटर्न देता. तो आप कहीं ना कहीं टॉप 5 के बगल में पहुंच जाते हो. ये 1 साल का मैंने एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे चेक किया है हम लोगों ने हर फंड का. Kapil Grover ji, you can talk, you can join our one-to-one webinar. They will help you with this. ठीक है फ्रेंड्स, so this is how we have created these strategies. जो आज के दिन जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, they have bought, जो MFDs हैं खास करके, they have bought all these strategies. We have given
they have bought all these strategies in mutual fund, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स. सो अगर इंडिविजुअल भी इफ यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, then you need this app for investment. This is what I can say for everyone, because it is very difficult to invest. So friends, I know trusting and giving your time would be because you have precious time. ठीक है, तो हम लोगों ने एक सिस्टम किया है where we call you for free of cost. There will be no cost involved in free book one-to-one training. Book your free one-to-one training today. यहाँ पे आप मेरे जो फ्रेंड हैं, मेरे जो कलीग हैं जो सेल्स देखते हैं, उन लोगों के साथ आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं और ऐप के बारे में और बहुत कुछ समझ सकते हैं. हम लोग इस ऐप के अंदर डेट से रिलेटेड, हम लोगों ने डेट म्यूचुअल फंड में भी बहुत ही सुंदर तरीके से इसको क्रिएट किया है, इस ऐप को क्रिएट किया है. म्यूचुअल फंड स्क्रीनर भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो उसके थ्रू आप बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं. लोगों की डेट की स्ट्रेटेजी भी है, इक्विटी की स्ट्रेटेजी भी है. सो यू गाइस कैन थिंक ऑफ बाइंग देम एंड इन्वेस्टिंग इन दीज ग्रेट स्ट्रेटेजीज. एनीथिंग एल्स फ्रेंड? Both are great, both are great, both are giving great return, but if you buy QBS one, that will help you. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जिन लोग को भी बाई करना है, स्ट्रेटेजीज के बारे में और डिटेल में समझना है और फर्दर ट्रस्ट बिल्ड करना है, प्लीज आप हमारे यहाँ 1-to-1 ट्रेनिंग जरूर लें. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप फ्री, मैंने लिंक भी भेज दिया है चैट में, ठीक है, और अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और 2-3 एक सवालात के जवाब देके आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं 1-to-1 ट्रेनिंग. आई विल हाईली रिकमेंड. we have been taking exclusive 1-to-1 training for MFDs. Most of the time we have done. So ADG, if you can call on this number, this is our sales head number, Pratik Tandon, 8360870004. So if you want, we can arrange this, no issue. No, all 1-to-1, no, 1-to-1 can also be for mutual fund ADG. So friends, बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अब हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, और जो लोग MFDs हैं, दोज हु आर स्ट्रगलिंग विथ रिटर्न्स, तो उन लोग दोनों के लिए मैं कहूंगा कि इट्स अ बेस्ट प्रपोजिशन टू गेट. या yes, you can book one ADG and you can also talk to Pratik. Parimal ji, you can talk to you can come in 1-to-1 webinar and you can speak to our sales people. They will help you with the packages and cost, so it will help you a lot. What is the QBS score? We need to check, Ajay Shiroi ji, for Nippon, then only we can suggest. Pratik number is 8360870004. 8360870004. So जिन लोगों का भी बड़ा फंड इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको गाइडेंस चाहिए, उनके लिए ये ऐप will be very helpful. So few people are asking for cost, so I'm showing cost. So we have this link of pricing and subscription. So we have 4,000 rupees package and 9,900 rupees package, जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड में 3 स्ट्रेटजीज ले सकते हैं, and which will be valid for 12 months. Sorry.
So valid for 12 months. तो you can decide कि आपको large, mid, small किसमें investment करना है. And before we leave, we end this session. Let me also show you कि हम लोगों ने एक allocation बनाया है कि how much one should allocate in large cap, mid cap and small cap while investing through mutual fund. ये easily mutual fund से ही possible होता है. So friends, so return you can expect from large cap mutual fund is 15 to 20, mid cap 18 to 25, small cap 25 to 30, और रिस्क भी दोनों में वैसा ही होता है. 15 से 20% का रिस्क लार्ज कैप में होता है, 18 से 25% का रिस्क मिड कैप में होता है, और 25 से 30% का रिस्क होता है स्मॉल कैप में. ड्रॉडाउन रिस्क, इसका मतलब आपने लॉस बुक नहीं किया लेकिन आपका रिटर्न एक बार गिर गया. ठीक है. और कितना इन्वेस्टमेंट? 40% इक्विटी म्यूचुअल फंड में होना चाहिए. ठीक है. 40% डेट में होना चाहिए. 20% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. सो दिस शुड बी द एलोकेशन. देन हम लोग आ जाते हैं 50% इन लार्ज कैप फंड. अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए? 50% इन लार्ज कैप, 30% in mid cap and 20% in small cap. So आप देखेंगे आपको 18 to 20% रिटर्न आपको हर साल मिलेंगे, मार्केट अप हो या डाउन, कोविड काइंड ऑफ सिनेरियो हो या कुछ भी हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. Okay friends, so please join one-to-one webinar, book your free one-to-one webinar. It's free now. So you can join this free one-to-one webinar, and hope you like the session. If you like the session, you can comment that yeah. Thank you, Danesh ji. Yeah, I will show you once again. You can take picture. This is the return one should expect. This is the allocation of total fund one should make, and thank you ADG. And this is the equity allocation one should make. Thank you Ashish Pal ji. Thank you Santosh ji. Thank you. Thank you friends. So goodbye, have a happy weekend, and please join us. You will enjoy markets rally, you will enjoy your investments, you will get great return. Thank you friends. Bye bye.